So we were at method to control air pollution. So today we'll discuss again. This was the homework given to the students also. So Hanji, what are the methods to reduce the air pollution? You will tell me one by one. Jaldi online students also. So offline one answer है don't burn crackers. Second answer is use electric cars. Any question from the online ones? Online बहुत कम बैठे हैं आज. Turn off car at red light. Yes, Jabji, you are right. Turn off car at red lights. Or you can add more points. We can use CNG, the cleaner fuel. Okay, point. Addition of filters in the chimneys of the factories. Or grow more trees and plant to reduce increasing greenhouse effect. Or replace wood, coal, kerosene with the clean fuel LPG for the domestic use. Use recycled paper to save the trees. Yes, Jabji, you are very much true. Bete. Use cycle to cover less distance. So you can use modern automobiles engine to bring out the complete combustion. अगर complete combustion होगी तो pollution कम होगा. You can use CNG, वो हमने कर लिया. Use unleaded, lead-free petrol in automobiles. Lead-free petrol. लेड क्या कॉज करती थी हमने कल ही किया बेटे. लेड डैमेज अवर ब्रेन, मेंटल डिसऑर्डर कॉज करती है. देन रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल शुड बी मेड मैंडेटरी. देयर शुड बी मैंडेटरी योर पोल्यूशन चेक. आजकल लगते भी हैं स्टिकर्स लगते हैं कि इट इज चेक्ड और नॉट. ओके सो बस. और एनकरेज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. Encourage use of public transport. So many points. To conclude, all the points I am concluding. What you can do? You can use modern engines. You can use cleaner fuels like CNG. You can use the public transport. You can walk or do cycling for the small distances. You can use lead-free petrol. You can plant more and more trees to reduce greenhouse effect. You can use the recycled paper to save the trees. You can use LPG instead of other domestic fuels like kerosene, wood, charcoal. You can use filters or catalytic converters to convert harmful gases like carbon monoxide into carbon dioxide in the factories. और बस कितने हो गए पॉइंट्स? बहुत सारे हो गए. Got 12 points. Now we have done about बेटे ताजमहल. मैंने आपको तब भी बताया कि ताजमहल खराब हो रहे हैं. ताजमहल में मार्बल किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का.
दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. अब व्हेन एसिड रेन होगी, एसिड रेन में तो बहुत सारे एसिड्स होंगे. अब ये एसिड इसके साथ कंबाइन होके, जब कोई भी एसिड आएगा बेटे, जब इसके साथ कंबाइन होगा ना, तो मान लो HCl आया तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा. अगर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा. तो ये सारे रिएक्ट हो जाते थे. अब ताजमहल को हमने करना है प्रोटेक्ट. ताजमहल किसके कारण खराब हो रहा था? उसके पास क्या थी? आगरा में. ताजमहल कहाँ है? आगरा में. कौन सी इंडस्ट्री है? एनीवन नोज? मथुरा ऑयल रिफाइनरी. राइट डाउन. मथुरा ऑयल रिफाइनरी. मथुरा ऑयल रिफाइनरी. ये मेन कॉज है ताजमहल के खराब होने का. इस इंडस्ट्री से हार्मफुल गैसेस आई. कौन कौन सी? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हाँ, तो इट रिजल्ट इन विच रेन? एसिड रेन. तो हमारा जो ताजमहल था वो क्या हो गया? येलो. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने कुछ करना था बेटे कि ना करे? तो गवर्नमेंट टेकन सम स्टेप. तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑर्डर्स दिए, उसने सर्टेन लॉज दिए कि ये इंप्लीमेंट होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द ताजमहल. ठीक है. सो यू कैन राइट अ सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताज. एंड वो स्टेप क्या क्या थे? राइट डाउन. जो इंडस्ट्रीज हैं, they must use cleaner fuel like CNG, LPG. The industries must use the cleaner fuel like CNG and LPG rather than other fuels. Diesel run vehicles, diesel run थ्री व्हील. थ्री मतलब जैसे ऑटो रिक्शा वाले. ठीक है. ऑटो रिक्शा वाले, उसका भी डीजल को रिप्लेस करके अगेन इट इज रिप्लेस्ड बाय CNG. थ्री व्हीलर्स को रिप्लेस करके we have again used CNG. Next, a natural gas pipeline has been laid to supply clean fuel to industries. Natural gas pipeline has been laid to supply clean fuel in industries. Heavy investments has been made in Mathura refinery to reduce pollution. Heavy investment मतलब उसमें फिल्टर वगैरह या क्लीनर फ्यूल लगाए होंगे, तो देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट इन मथुरा रिफाइनरी कि उसमें जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मी यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स एंड यूजिंग एयर फिल्टर्स,
ये सब कुछ क्या होगा इन मथुरा रिफाइनरी। 19,000 sapling are placed in Taj Mahal. 19,000 मतलब इतने ट्रीज लगाए हैं हमने। सैपलिंग इन ताज नेचर वॉक। यस मेरे मानसवी। मैम आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है, मैं बार बार ये डिस्कनेक्ट कर हो रहे रहा हूँ। हैं कि जो ताजमहल है वो येलो हो गया था, तो उसके ऑर्डर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। ओके। ठीक है। सो मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट, मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट ये स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल्ड has been installed with pollution free devices. Agra Heritage Fund, Agra Heritage Fund has been raised to run or to develop a solar power plant. ठीक है। यस रिदम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुझे सेकंड पॉइंट और जो आपने लिखवाया और फिफ्थ पॉइंट समझ नहीं आया। बेटे जो डीजल रन थ्री व्हीलर्स हैं, मतलब जो आपके ऑटो रिक्शा हैं वो डीजल से रन होते थे, उसको सीएनजी से रिप्लेस कर दिया गया। तो डीजल ज्यादा पॉल्यूट करता है, सीएनजी कम Yes, पॉल्यूट करता है, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया। और कौन सा पॉइंट? मैम फिफ्थ। 19,000 सैपलिंग। मैम सॉरी फोर्थ। हैवी इन्वेस्टमेंट। यस मैम। हाँ, तो बेटे हैवी इन्वेस्टमेंट का मीन्स हमने बहुत ज्यादा प्राइस लगाई। देखो अगर किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज करना है, जैसे अगर मथुरा ऑयल रिफाइनरी में उन्होंने एयर प्योरीफायर्स लगाए होंगे, अगर वो डीजल से रन कर रही होगी तो उसको सीएनजी से रन करवाया होगा, तो सीएनजी की पाइपलाइन भी लगवाई होगी, तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट, उनको बहुत खर्चा आ गया होगा। तो ये मथुरा रिफाइनरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराई गई कि उसमें जो है आपकी जो गैसेस निकलती थी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस ना आए। एंड मैम सेवन पॉइंट जो आपने अभी लिखवाया लास्ट, तो जो आगरा है। ताजमहल है, जो ताजमहल है
उसको लाइट की जरूरत है, ठीक है। तो जो Yes, ma'am. आगरा है उसमें एक हेरिटेज है, क्या है, ताजमहल हमारा मॉन्यूमेंट है, उसका फंड रेज कर दिया, मतलब उसमें पैसे ज्यादा डालती है गवर्नमेंट, Okay. है कि वो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सके, कि ताजमहल की जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो सके, जिनमें लाइट फैन वगैरह जो भी चलना है जो रिक्वायर्ड है वो पूरा हो सके, ठीक Okay, है। ma'am. नाउ कम टू बेटे वाटर पॉल्यूशन। So who will tell me what is water pollution? What was air pollution? Same as water pollution. जिससे एयर कंटेमिनेटेड थी उसको वाटर को कंटेमिनेट कर दोगे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब किससे करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस से। टॉक्सिस में गैसेस भी आ जाएंगी, एसिड्स भी आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स भी आ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स भी आ जाएंगे, तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो राइट डाउन द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस। द कंटेमिनेशन of water by unwanted harmful substance। अब ये सब्सटेंस क्या क्या होंगे, हाँ कुछ भी लिख दो, डोमेस्टिक वेस्ट, यस, फर्टिलाइजर्स, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कुछ मर्जी लिखते रहो। ऑयल्स, ऑयल स्पिल होती है, यू कैन राइट पेस्टिसाइड्स etc which cause damage to both living and non-living things। तो जैसे एयर पोल्यूटेंट थे, व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट आर दिस हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, यू कैन राइट वाटर पोल्यूटेंट हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस दैट कंटेमिनेट द वाटर, सो वाटर पोल्यूटेंट, ठीक है, राइट योरसेल्फ। these substance जो हैं these are called water pollutant। तो what are causes of water pollution, सारे causes तो हमने यहाँ लिख दिए, डेफिनेशन में ही सारे causes हैं। हाँ, पेस्टिसाइड्स जो हैं हम plants को जब डालते हैं वो रेन के साथ वाटर बॉडी में आ जाता है, ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, सो मेनी पॉइंट्स। राइट डाउन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। So just I will give you the heading and you will write yourself। क्या हो गया,
मेरे पास तो एक ही है। वो भी दे दो बेटे अगर है तो। Causes. You can write industrial waste. Yes, sewage. Domestic waste, yes, sewage. Human activities. Agriculture waste. अमरजोत सही है। Oil spills. जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या लिखूंगी इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में? सी बेटे देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्रीज के नेम लिखो अपने आप, जैसे पेपर होगी, टेक्सटाइल होगी, जो भी होगी, जो आपके दिमाग में आता है तब। अब इन इंडस्ट्री से जो वेस्ट आते हैं, वेस्ट में क्या हो गए? टॉक्सिक मटेरियल्स। टॉक्सिक हम कर चुके हैं, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, सब टॉक्सिक है। ये सब किस में जाते हैं? वाटर बॉडीज में। ये वाटर बॉडीज में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये दे आर अनट्रीटेड। You can write yourself the untreated industrial waste from the industry like leather, paper, textile. ठीक है? फिर लिख रहे हो, खुद नहीं लिखा जाता आपसे? थर्ड क्लास में ही आ जाता है ये चैप्टर। खुद लिख दो, पॉइंट जितने मर्जी लिखते रहो। आपको मैंने हेडिंग दे दी, आप हेडिंग को फिल नहीं कर सकते, फिर लिखने बैठ जाते हो। डोमेस्टिक पे आ जाओ, घर पे क्या वेस्ट होता है, जल्दी बोलो। हाँ, लिक्विड वेस्ट हो गया, टॉयलेट वेस्ट हो गया, ये अनट्रीटेड चला जाता है। यस मानसरी, वो ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाएंगी। डोमेस्टिक वेस्ट में आपके जैसे किचन का वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट, यस, टॉयलेट वेस्ट हो गया, ये सब कुछ वाटर पॉल्यूशन करेगा। हम वाटर वेस्ट, हम जो हम कपड़े धोने से आता है। हाँ, अब आ जाओ ह्यूमन एक्टिविटीज। गाँव में चले जाओ, रिवर्स पे ही कपड़े धो रहे होते हैं आराम से, तो ये हमारी एक्टिविटी। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स, बाथिंग ऑफ सी, बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर, ऐसे पॉइंट्स अपने आप लिखो। यहाँ नहीं ब्रशिंग लिखना। एग्रीकल्चर वेस्ट पे आ जाओ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट है, लिखो। देन ऑयल स्पिल्स, जो टैंकर्स हैं बड़े बड़े ऑयल्स के, वो हमने कभी कभी देखा होगा ऐसे गिराए जाते हैं, तभी तो आपको ये बोला जाता है कि घर पे जब ऑयल है वो अपनी सिंक में मत फेंको। तो दिस इज अ डोमेस्टिक वेस्ट। कुछ मर्जी लिखो बेटे, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरी इंडिपेंडेंस डे दिया गया आज का, कि जो मर्जी लिखते रहो इसमें सोच के। ये बुक से पढ़ने वाला चैप्टर है ही नहीं है। इसमें क्या समझाना है मैंने आपको? कुछ मर्जी लिखो। इंडस्ट्री आपको मैंने मेन हेडिंग बता दी, इसको फिल करो अपने, ठीक है? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से वेस्ट आएगा।
डोमेस्टिक हमारे घरों से आएगा। अब देखो क्या क्या आ रहा है, डिटर्जेंट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, टॉयलेट वेस्ट आ जाता है, कुछ मर्जी लिखते रहो, कोई गलत करेगा? कोई नहीं गलत करेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज में आप कोई नहलाते हो, एनिमल्स को नहलाते हो, कुछ भी करते हो, कपड़े धोने चले जाते हो। एग्रीकल्चर वेस्ट में जितने भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो बह के चले जाते हैं। ऑयल स्पिल, ऑयल बढ़ के बड़े बड़े टैंकर्स डाले जाते हैं, ये सब वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। अब आ जाओ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। चलो 4 मेन हार्मफुल इफेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या हमारी हेल्थ खराब होगी वाटर पॉल्यूशन से? जैसे कि टाइफाइड वगैरह होता है ना, तो यह राइट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ दिख रहा है इनको? यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, harmful effect on aquatic life, अब हमें क्या इफेक्ट होगा? हम ये गंदा सा पानी पी लें, हमें डिजीजेज हो जाएंगी, जॉन्डिस हो जाएगा, होता है ना, टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो यू कैन राइट पॉइंट्स, राइट डाउन। Polluted water may cause many diseases like cholera, typhoid, jaundice, dysentery, anything. ठीक है, you can write down. Now eutrophication समझने वाली बात है, then you will write down. पहले समझ लो, ठीक है। यूट्रिफिकेशन क्या है कि जो हमने वेस्ट डाला उनके बीच में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी थे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स थे। अब फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे, जो हमने काई देखी है पानी के ऊपर, ग्रीन ग्रीन एल्गी जो होती है, काई है ना। अब वो जब आप वाटर बॉडीज के अंदर अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह चले गए, कुछ अच्छे भी सॉल्ट चले गए, अब वहां पे काई ग्रो करनी शुरू कर देगी, जिसे कहते हैं एल्गी, जिसे हम कहते हैं एल्गी ब्लूम हो जाता है, बहुत सारी एल्गी हो जाएगी वहां पे। अब एल्गी ने ग्रो करना है तो ऑक्सीजन तो लेगी वाटर बॉडी से, लेगी कि नहीं लेगी? ठीक है। अब वहां पे या हम ये कह दें कि जब एल्गी ग्रो करेगी तो जो नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इतनी वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। ये भी हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, उनको कम मिलेंगे, एल्गी खुद ग्रो करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। समझ आ रही है? जब पानी में आप ऐसी चीजें डालोगे जो अनवांटेड प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं,
समझ आई? तो यू कैन राइट डाउन अ डेफिनेशन. वॉशिंग अवे ऑफ द फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडी. Washing away of the fertilizers into water body causes increased growth of algae. And other weeds in the water body. Causes increased growth of increased growth of algae in the water bodies called algae bloom. ठीक. अब जब ये algae bloom होगी तो क्या हो गया? वाटर बॉडी की ऑक्सीजन यूज होगी. अब वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स की आ गई कमी. अब जो बाकी प्लांट्स हैं वाटर बॉडीज में, क्या वो ग्रो कर पाएंगे? क्या इक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. तो इस प्रोसेस को कि जो न्यूट्रिएंट्स में कमी आना वाटर बॉडी को, इसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन. You can write the process of nutrient enrichment of water bodies. The process of nutrient enrichment of water bodies that stimulates the growth of aquatic plants in water body which aquatic plant like लिख सकते हो algae, which result in depletion of dissolved oxygen is called eutrophication. Depletion of oxygen in water bodies is called eutrophication. बेटे यूट्रिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच. क्या किस हमारी जो वाटर बॉडी है वो न्यूट्रिएंट रिच होगी, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट चलेगी. अब जब न्यूट्रिएंट रिच हुई तो उससे क्या हुआ? देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइक एल्गी. ठीक है. अब जब एल्गी ग्रो करना शुरू हुआ तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो इसे यूट्रिफिकेशन कहते हैं. अब नेक्स्ट इज बेटे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. आ जाए समझो इसको फिर लिखना. ये तो हमने फर्टिलाइजर्स की बात करी. फर्टिलाइजर्स के साथ वाटर बॉडी में पेस्टिसाइड्स भी जाएंगे, जैसे कि DDT. जैसे कि आपने फूड चेन करी हुई, फूड चेन में एक एनिमल खाता है, फिर दूसरा खाता है, फिर तीसरा खाता है, फिर चौथा खाता है. यही तो करते हो आप. फूड चेन में यही खाता है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या है कि एक ने, अब इक्वेटिक प्लांट के अंदर मान लो DDT चलेगी, उस इक्वेटिक प्लांट से किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में ये DDT की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी. समझ आ रही है? और हर एक लेवल पे DDT की कॉन्सेंट्रेशन नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? मेरे अंदर DDT गई, अब जो मेरे से बड़ा होगा ना, मेरे जैसे 5 खाएगा. समझ रहे हो? वो एक से तो नहीं बनेगा. अब एप्पल में गई, अब एक एप्पल तो नहीं खाओगे,
5 ही खाओगे। अब हमें तो वो 5 एप्पल की रेट चलेगी ना, समझ आ रही है? फिर वो 5 एप्पल को आगे खाएंगे, फिर 5 एप्पल को उससे आगे खाएंगे, फिर 5 एप्पल को उससे आगे खाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, हर एक लेवल पे डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। गॉट द पॉइंट? ओके, हम डेफिनेशन